नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हुलाल चंद्र सिंह। अगले एक घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है, और ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि पश्चिम एशिया का जो संकट है, युद्ध से जो उपजे हालात हैं, उसमें क्या एंटी मोदी गैंग जो है, वो टूल किट्स जो है, वो अफवाह फैलाने में लगा हुआ है क्या? क्योंकि ऐसी खबर और उन अफवाह का असर दिखता है, इसीलिए इस पर सबसे पहले करेंगे पड़ताल। और यह भी कि इस बीच सरकार ने क्या कुछ कहा है और कौन से कदम उठाए हैं। इसके बाद आज की खास चर्चा होगी कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया, उसमें दूसरी पूरक सूची यानी कि जो सप्लीमेंट्री लिस्ट है, वो आज आने की संभावना है। पहली सप्लीमेंट्री आ चुकी है, आज दूसरी पूरक सूची आएगी। उसमें क्या कुछ हो सकता है, इस पर खास चर्चा करेंगे। और इसके बाद असम चुनाव की भी बात करेंगे, लेकिन इस समय सीधे चलते हैं अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता में। चल रहे घटनाक्रम पर भारत सरकार लगातार नजर बनाए रखे है और इंटर मिनिस्ट्रियल ब्रीफिंग के माध्यम से सरकार द्वारा उठाए गए प्रयासों के बारे में कंटिन्यूअस हम लोग अपडेट देते रहे हैं। इस क्रम में मैं सबसे पहले चेयरमैन सीबीआईसी श्री विवेक चतुर्वेदी जी से अनुरोध करूंगी कि वे पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी रिडक्शन के बारे में जानकारी दें। ओवर टू यू सर। धन्यवाद अनुपमा मैडम। नमस्कार मीडिया के सभी साथियों। तो जैसा कि आपको मालूम होगा, पश्चिम एशिया की क्राइसिस काफ़ी गंभीर रूप से चल रही है। यू वांट मी टू स्पीक इन इंग्लिश? All right. I'll be bilingual if that helps you. All right. So most of us are aware of the dimensions of the West Asia crisis and what this is translating into as far as the Indian economy is concerned, particularly in relation to the disruption in the supplies of the petroleum products. Now, following this crisis, there has been a significant surge in the international crude oil prices. इस क्राइसिस की वजह से जो अंतर्राष्ट्रीय क्रूड के प्राइसेस हैं, उनमें स्वाभाविक रूप से काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। और उसके अलावा there has also been a higher surge in the prices of petrol, diesel and aviation turbine fuel. तो इससे हुआ क्या है कि this creates a market and it also creates an incentive for the refineries to be exporting at higher international prices. So the government's response on that has been a very calibrated response. And yesterday we came up with certain export duties in the form of special additional excise duty, SAED, and a road and infrastructure cess. Both these duties and cess have been imposed on the export of diesel and the aviation turbine fuel, which has been imported from outside India. अगर मैं रेट की बात करूं तो डीजल पे 21.5% रुपए पर लीटर है और ATF पे 29.5 नहीं 29.5 rupees per liter है. Now these duties on petrol and are nil at present. So the duties which have been imposed on diesel and ATF. The duties on petrol are nil based upon the present crack margins. However, the rates will be reviewed on a fortnightly basis. हर 15 दिन में सरकार एक मैकेनिज्म लाएगी जिससे कि ये रेट्स रिव्यू हो। अब इस चेंजेस का फ़ायदा क्या होगा, इससे हम क्या हासिल करने वाले हैं? The idea behind having these changes is to prioritize the domestic availability of these products, that is diesel and ATF, and at the same time to ensure an energy security for the country in the midst of global uncertainty
which has been exacerbated by the disruption in the supply chain. And of course, the uncertainty prevailing in the international markets, both in terms of availability and price. Revenue gain at the back of the envelope calculation for these proposals would be roughly around 1,500 crores rupees in a fortnight. Situation, however, as I said earlier, will be monitored on a fortnightly basis. Now, there have been also, these were the changes on the export side. I will now come to the changes that have been made on the domestic side. Because as you would have read the Gazette notification yesterday, the changes are in two parts. One is an imposition of an export duty, and secondly, there have been changes in the excise duty on petrol and diesel for domestic consumption, where there has been a reduction by rupees 10 per litre by reducing the domestic special additional excise component of the current stack of levy that these products suffer when they are imported. So, in real terms, the revised duty on petrol comes now from rupees 21.90 rupees per litre to 11.90 rupees per litre. The revised duty on petrol में जो संशोधित ड्यूटी है वो पहले 21 रुपये 90 पैसे प्रति लीटर थी, and from 21.90 rupees per litre it will now come down to 11.90 rupees per litre, 11.90 रुपये per litre. एक रिडक्शन है 10 रुपये पर लीटर का. सिमिलरली डीजल पर द एग्जिस्टिंग ड्यूटी वाज 17.80 रुपये पर लीटर, which now will come down to 7.80 per litre. Now these above steps have been taken largely to reduce the under recoveries for the oil marketing companies, while at the same time ensuring that there is no increase in the prices of petrol and diesel for the consumers on account of the ongoing crisis. Revenue implications will be seen by the department. As I said earlier, on the side of the export, there was a revenue implication. We will be looking at the trends of imports for the fortnightly period and then coming up with what has been the revenue implication. Because please understand that the situation is dynamic. It is not business as usual where you would have a certain predictability कि इतना metric ton माल इतने period में आएगा. We are living in difficult times. You are all aware from the media about passages of ships and attendant problems. So any implication on that will of course have to factor in the actual supplies of goods coming into the country. And therefore, even within a limited time frame of fortnight, the department will have to also look at the supplies before you are able to come up with a very realistic implication as far as the revenue is concerned. So these are my broad opening remarks. I'm open to questions. And I also have the Joint Secretary Tariff Research Unit in the CBIC, Mr. Kandhari, with me. So in case there are any further drill downs, we'll be very happy to answer your queries. And I'll now pass on to Anupma Madam so that she can conduct the further proceedings. थैंक यू सर. अब मैं मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वे एनर्जी सिक्योरिटी और एलपीजी सप्लाई के बारे में आपको जानकारी दें. नमस्कार. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वी आर स्टिल इन द वॉर सिचुएशन और इस मिडिल ईस्ट में इस वॉर की वजह से हमारे जो सप्लाईज है क्रूड का, एलपीजी का, एलएनजी का सब अफेक्ट हुए. क्रूड का प्राइस, बाकी प्रोडक्ट्स का प्राइस भी इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ा. बट भारत सरकार ने कई स्तर पर कई इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लिए
और इस सिचुएशन को बहुत इफ़ेक्टिवली मैनेज करने के लिए। आज की तारीख में वी हैव सफिशिएंट क्रूड इन्वेंट्रीज और अगले 2 महीने के लिए सप्लाईज हैव बीन लाइंड अप। सिचुएशन इज़ कंफर्टेबल विद रिस्पेक्ट टू LPG एंड PNG ऑल्सो। हमारी रिफाइनरीज 100% या उससे भी ज़्यादा कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और domestic production of LPG has increased by almost 40%. LPG आप जैसा जानते हैं कि we have a huge import dependency और इसका 90% जो आ रहा था वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आ रहा था। इसलिए भारत सरकार ने निर्णय लिया कि डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को प्रायोरिटाइज किया जाएगा और इसी क्रम में उनको प्रायोरिटाइज करते हुए कमर्शियल सप्लाईज को सबसे पहले कुछ समय के लिए रोका गया। उसके बाद बहुत कैलिब्रेटेड डिसीजन लेते हुए पहले 20% कमर्शियल सप्लाईज को रेस्टोर किया गया, उसके बाद 10% based on ease of doing business for the expansion of PNG network। उसके बाद भारत सरकार ने इसको 50% किया और आज इसको 70% किया गया है। इन सभी प्रयत्नों के फलस्वरूप कमर्शियल LPG लगभग पिछले 14 मार्च से कल तक लगभग 30,000 टन कमर्शियल कंज्यूमर्स को दी गई है। जब भारत सरकार ने ये निर्णय लिए तो ये भी डिसीजन ये भी ख्याल रखा कि रेस्टोरेंट, ढाबा, होटल, इंडस्ट्रियल कैंटीन, माइग्रेंट लेबर उनको प्रायोरिटाइज किया जाए। इसके अलावा जो आज ऑर्डर दिया गया है उसमें ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रायोरिटी शैल बी टू स्टील, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, डाइज, केमिकल्स एंड प्लास्टिक्स। लगभग 30,000 सिलेंडर माइग्रेंट लेबर को 5 किलो के FTL सिलेंडर्स भी दिए गए हैं, सेल हुए हैं। ये सब बताने का कारण ये है कि मैं ये दोबारा से स्पष्ट करना चाहती हूँ कि हमारे पास सफिशेंट अमाउंट में क्रूड अवेलेबल है, पेट्रोल डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, LPG की सप्लाईज इंश्योर्ड हैं, LNG की सप्लाईज इंश्योर्ड हैं, PNG की सप्लाईज इंश्योर्ड हैं। बावजूद इसके कई जगह पर र्यूमर्स देखे गए हैं और उन र्यूमर्स की वजह से पेट्रोल पंप्स पर लंबी लंबी लाइनें भी देखी गई हैं। आपने देखा कि क्रूड का प्राइस, इंडियन बास्केट का भी प्राइस जो लगभग $70 पर बैरल के आसपास घूम रहा था वो $100 से भी ऊपर पहुंच गया। लेकिन इसके बावजूद भी भारत सरकार ने ये इंश्योर किया कि किसी भी प्रोडक्ट की कोई शॉर्टेज ना हो। हमारे आसपास के देश दुनिया भर में फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज़ हुए हैं, लेकिन हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल का कोई प्राइस इंक्रीज़ नहीं हुआ है। इसी क्रम में जैसा कि आपको अभी बताया गया है कि एक्साइज ड्यूटी रिडक्शन हुआ है। भारत सरकार के पास 2 ऑप्शन थे, या तो कंज्यूमर्स पे पास ऑन होता या सरकार खुद हिट लेती। तो यहाँ पर सरकार ने खुद हिट लिया है और ये इंश्योर किया है कि पेट्रोल और डीजल का प्राइस ना बढ़े। इस संबंध में मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि अप्रैल 2022 से पेट्रोल और डीजल का प्राइस या तो कम हुआ है या वही रहा है, ये कभी इंक्रीज़ नहीं हुआ है। अप्रैल 2025 में जब ₹2 एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई तब भी इसको कंज्यूमर को पास ऑन नहीं किया गया था। सो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट तथ्य है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसी क्रम में हमें एक PNG नेटवर्क को एक्सपैंड करने की भी एक अपॉर्चुनिटी मिली। इस संबंध में डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को
सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ को भी लिखा गया, सभी से सहयोग भी प्राप्त हुआ। मॉर्थ ने अपनी टाइमलाइन स्क्वीज़ की अप्रूवल के लिए, DPIIT पैसों ने भी अपने टाइमलाइन स्क्वीज़ की अप्रूवल देने के लिए। इसी तरह स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत कई स्टेट गवर्नमेंट ने कई सारे ऑर्डर्स इशू किए। इन सभी प्रयासों के वजह से अब प्रतिदिन लगभग 10,000 से ज़्यादा PNG कनेक्शंस कंज्यूमर्स को दिए जा रहे हैं। इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, र्यूमर्स को कंट्रोल करने के लिए, ब्लैक मार्केटिंग को कंट्रोल करने के लिए, होर्डिंग को कंट्रोल करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स का बहुत क्रूशियल रोल है और स्टेट गवर्नमेंट के सहयोग से इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल करने की कोशिश भी की गई है। हर रोज़ रेड हो रही हैं, सिलेंडर सीज हो रहे हैं, FIR भी बुक हुई है। अगर मैं आपको कल का डाटा बताऊं तो लगभग 3,000 रेड हुई हैं, 1,500 सिलेंडर सीज हुए हैं और अभी तक लगभग 710 FIR रजिस्टर हो चुकी हैं। इसके अलावा हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ की जो टीम्स हैं वो भी एक्टिव हैं और वो भी सरप्राइज इंस्पेक्शन कर रही हैं। लगभग 350 डिस्ट्रीब्यूटर्स को शो कॉज नोटिस इशू किए गए हैं। अंत में मैं आप सभी के माध्यम से ये देशवासियों को कहना चाहूँगी, मैं दोबारा ऑन द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन मैं ये कह रही हूँ कि हमारे पास पर्याप्त सप्लाईज़ हैं, क्रूड की भी, LPG की भी, पेट्रोल की भी, डीजल की भी। इसलिए कृपया किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें, ज़रूरत होने पर परचेज करें और पेट्रोल पंप पर जो इतना भीड़ है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद। थैंक यू सुजाता। अब मैं मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज के स्पेशल सेक्रेटरी श्री राजेश कुमार सिन्हा जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वे शिपिंग ऑपरेशन से जुड़े मुद्दों पर आपको अपडेट दें। ओवर टू यू। धन्यवाद महोदय। आप सभी को नमस्कार। खाड़ी क्षेत्र में कोई भी भारतीय ध्वज या नाविक के विषय में कोई सूचना पिछले 24 घंटे में नहीं है, सभी सुरक्षित हैं। पर्शियन गल्फ में जो 20 जहाज हैं भारतीय ध्वज के, उस पे 540 भारतीय नाविक हैं, वे भी सुरक्षित हैं। पिछले 24 घंटे में DG शिपिंग का जो DG कॉम सेंटर है, जो 24/7 सक्रिय रहता है, उसमें 98 कॉल्स और 335 ईमेल्स प्राप्त हुई जिनका जवाब दिया गया। और पिछले 24 घंटों में 25 भारतीय नाविकों को सेफली इंडिया वापस लाया गया, रिपैट्रिएट किया गया आफ्टर साइन ऑफ फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द गल्फ एरिया। किसी भी पोर्ट पे, मेजर पोर्ट या अदर देन मेजर पोर्ट पे कोई कंजेशन या भीड़ भाड़ की कोई सूचना नहीं है। ये हमने मेजर पोर्ट से भी, सारे मेजर पोर्ट से भी और स्टेट मैरीटाइम बोर्ड्स गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी सभी से इसकी पुष्टि की है। सभी जगह पोर्ट का ऑपरेशन संचालन सुचारू रूप से चल रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग, वाटरवेज, विदेश मंत्रालय, भारतीय मिशन और हमारे मैरीटाइम सेक्टर के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ लगातार समन्वय बनाए रखे हुए हैं। इससे नाविकों का कल्याण और निर्बाध समुद्री संचालन सुरक्षित कर रहा है। धन्यवाद। थैंक यू सर। अब मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के एडिशनल सेक्रेटरी श्री रणधीर जायसवाल जी से अनुरोध करूंगी कि वे एक्सटर्नल अफेयर्स के पर्सपेक्टिव्स में आपको अपडेट दें। Thank you, ma'am. Our conversation with global partners continue. In this regard, I would like to update you with the recent conversations that we are having with countries abroad. External Affairs Minister is presently visiting France to attend the G7 Foreign Ministers meeting, which is being held on 26th and 27th, that is yesterday and today. On the sidelines, he held several meetings with his counterparts from participating countries, where aside from bilateral ties, the leaders also discussed the ongoing developments in West Asia. He met with foreign ministers of
France, Canada, South Korea, Japan, Brazil, UK, Germany, and Ukraine. External Affairs Minister spoke at the G7 Foreign Ministers meeting session on global governance reform. This happened yesterday. He highlighted the urgency of UN Security Council reforms, streamlining peacekeeping operations and strengthening humanitarian supply chains. He specifically raised Global South's concerns about energy challenges, fertilizer supplies, and food security. At the second session of the G7 Foreign Ministers meeting, External Affairs Minister conveyed the uncertainties arising from the conflict in West Asia and made a stronger case for more resilient trade corridors and supply chains. Thank you. थैंक यू। अब मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के एडिशनल सेक्रेटरी गल्फ श्री असीम आर महाजन जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि गल्फ एरिया से जुड़े लेटेस्ट डेवलपमेंट में आपको अपडेट दें। ओवर टू यू। Good afternoon. The Ministry of External Affairs continues to closely monitor the developments in the Gulf and the West Asia region. The safety, security, and welfare of the large Indian community in the region remains our highest priority. Our dedicated special control room remains operational to assist and support Indian nationals and their families. We remain in continuous touch with state governments and union territories to share information and coordinate our efforts. Our missions and posts across the region are functioning round the clock, operating 24/7 helplines, regularly issuing updated advisories, and maintaining regular contact with a large number of Indian associations and organizations spread across the region. They also remain in close contact with the local governments. Our missions continue to proactively assist seafarers, stranded Indian nationals, and short-term visitors for facilitation of visas, consular services, and logistical support where required. We are according high priority to the welfare of Indian students in the Gulf countries. Government is making every effort to see that students' academic year is not impacted. Our missions have been in regular touch and are actively coordinating with the local authorities and the Indian schools in the region, as well as with CBSE, ICSE, and Kerala boards. Grade 10 and 12 final exams in the region have been cancelled by CBSE and ICSE boards. The mode of declaration of results will be notified by the respective boards. Kerala board has announced that it has postponed the exams in the region and will review the position on April 6th. National Testing Agency is seized of the matter regarding the conduct of competitive exams, including JEE and NEET. Yesterday, NTA has issued an advisory on city of examination for the JEE Main 2026 candidates registered from Kuwait, Dubai, and Bahrain. An update on the status of flights. Since February 28th, around 475,000 passengers have returned from the region to India. Airlines continue to operate limited non-scheduled flights based on operational and safety considerations from UAE to India. Around 80 flights are expected to operate today from UAE to various destinations in India. Flights are operating from various airports in Saudi Arabia and Oman to different destinations in India. With the Qatar airspace partially open, Qatar Airways is expected to operate around 10 flights to India today. Kuwait and Bahrain airspace remain closed. Jazeera Airways of Kuwait and Gulf Air of Bahrain have been operating flights from Dammam Airport of Saudi Arabia to various destinations in India. Due to flight restrictions and airspace closure, we continue to facilitate travel of Indian nationals from Iran through Armenia and Azerbaijan to India, from Israel through Jordan to India, from Iraq through Jordan and Saudi Arabia to India, and from Kuwait and Bahrain through Saudi Arabia to India. Yesterday, an Indian national unfortunately lost his life in an attack in Abu Dhabi. We express our deepest condolences to the family of the deceased. Our mission in Abu Dhabi is in touch with the family and is coordinating closely with the local authorities for the early return of his mortal remains to India. Another Indian national also sustained minor injuries and has been discharged from the hospital. 7 Indian nationals have unfortunately lost their lives and 1 is missing in various incidents. Our missions in Oman, Iraq, and UAE are in regular touch with the concerned authorities regarding the missing Indian national
and for the early repatriation of mortal remains of the other deceased Indian nationals. Thank you. थैंक यू. अब मैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के जॉइंट सेक्रेटरी श्री सेंथिल राजन जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वे पब्लिक कम्युनिकेशन से रिलेटेड मैटर्स पे जानकारी दें. ओवर टू यू. Good afternoon. Thank you, ma'am. We would like to appeal to all citizens not to believe in rumors and also be very cautious about fake news. Earlier, there were fake news being spread and misinformation and rumors being spread about shortage of cylinders. But thanks to the media and the efforts that we have done, panic booking of cylinders had stopped. But now, in the last 2 days, there has been more panic and rumors being created about supply of petrol and diesel. As my colleague had clearly pointed out, there is no shortage of supply of petrol and diesel. There is no need for the citizens to rush and reach the petrol pumps for their supplies. There are efforts being done to spread rumors. Please do not believe in these rumors. We also ask all the state governments to continue their action against anyone trying to spread fake news, misinformation, and also attempts being made by people to either hoard petrol or diesel or engage in black marketing of cylinders. It is very clear that there is no shortage and the supplies are in place, and we all need not panic and reach the petrol pumps or the OMCs for the supply of their cylinders. Thank you. Now we will take few questions from media. Please introduce yourself. So we will start from 271. Good afternoon. My name is Saptaparna Ghosh. I'm from The Hindu. One question to Randhir sir. We have been, reading about the Iranian foreign minister talking about safe passage to certain quote-unquote friendly countries, which includes India. So what is the MEA's assessment of the same as of now? And how are we looking to approach the thing going forward? And the second question to CBIC, if we could get a number on the amount of tax revenues that the government would be losing out on over the next week or over the next couple of weeks or this month because of the revision in excise that happened this morning. So if we could, get a number on that. Thank you. Two. Atul Mathur from Times of India. This is for the Petroleum Ministry. Ma'am, while you claim that there's absolutely no shortage of fuel in the country, there have been reports from several parts, including Gurgaon, Noida, of partial dryouts and shortage of petrol. And these are reports from our colleagues who are working there. So what do you have to say on that? And secondly, transporters claim that after the hike in industrial diesel prices, there have been some such people who are taking diesel from the fuel pumps. Has government done any kind of assessment on that? 11. I wanted to, repeating what Saptavan asked, I wanted to ask what would be the overall implication in terms of revenue, also because of the duty levied on ATF and diesel exports? Will there be an overall loss, or both of them will balance out each other? 17. मैं ब्रह्म प्रकाश दुबे हूँ जी न्यूज़ से. मेरा सवाल है कि आपने कहा कि 2 महीने का स्टॉक है हमारे पास, तो ये पेट्रोल, डीजल और एलपीजी तीनों का है या सिर्फ पेट्रोल डीजल का है? और दूसरा मेरा ये सवाल है कि क्या केंद्र की तरफ से राज्यों को ये भी कम्युनिकेट किया गया है कि आने वाले दिनों में लॉकडाउन लग सकता है? क्योंकि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जिस तरह से कहा है कि आने वाले दिनों में लॉकडाउन लग सकता है, तो क्या वो एक पॉलिटिकल राजनीतिक बयान है या फिर केंद्र की तरफ से उनको इस तरह की सूचना दी गई है? और एक सवाल विवेक जी से कि आपने कहा कि हर 15 दिन में हम समीक्षा करेंगे, तो क्या आने वाले दिनों में अगर क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते हैं तो फिर क्या पेट्रोल डीजल के भी दाम बढ़ सकते हैं या फिर सरकार इसको अभी कंट्रोल रखेगी? थैंक यू. 142. Hi, this is Shrimi Chaudhary from NDTV Profit. Just wanted a clarity that from CBIC Chairman Sir, that why does this exported ATF attract a higher special duty, which is coming to around 50 rupees per litre compared to domestic, which is coming to 20.5 per litre? So is this going to move up the ATF prices as well? 45.
I'm Prakash Pedashi from ET Now. The Oil Ministry data shows that the under recovery on petrol is roughly around 26 per liter, whereas on diesel it is around 81.90 per liter. So why is there a huge difference between these two? 262. नमस्कार, मैं अभिषेक सिंह लासन पत्रिका से। मैम, बालोतरा की एक एचपीसीएल की रिफाइनरी थी, वो लगभग तैयार है ऐसा बताया गया था एक प्रश्न के जवाब में संसद में। तो क्या इस क्रूशियल टाइम में उसको जल्दी करके और तैयार करके क्या उसकी रनिंग स्टार्ट होने की उम्मीद है? 4. I'm Dhruvaksh from Business Standard. My question is for Sinha sir. Sir, because extending what was asked to Randhir sir just a while back, the idea of safe passage and the developments are happening that are over there. Some reports say that ships are already preparing to leave the strait, and there are some ships that are preparing to enter the strait as well. Would you be able to comment on return to normalcy in terms of the movement? Because now reports are saying that ships are also looking to enter. So in terms of that, just wanted to know if you are in a position to comment now when the 20 ships will be out, and are we looking at some sort of normalcy returning in the strait? 54. Thank you. Amar Zaidi from PTI. Couple of questions. One to Sujata ma'am. There's a discrepancy between the under recovery figure that the ministry put out in the press release just now, a short while back, and the one that the minister had tweeted in the morning. 81.9. Discrepancy between the under recoveries on petrol and diesel that the ministry put out in a press statement just now, short while back, and the one that the minister had tweeted in the morning. Can you clarify which one is the correct one? And the second question is to the CBIC. Can you clarify on the notification number 10, which says that the basic excise duty on ATF for sale to airlines that are outbound is being exempt? Is that the case? Is my reading correct? Thank you. 9. Good afternoon, Nikunj Johri from Reuters here. I wanted to ask CBIC chairman, when the special additional excise duty was implemented in 2022, there was a DGFT order which required all the exporters of fuel to mandatorily sell certain percentage of their exports in domestic market. So will that also be effective now? 234. सुजाता मैम से दो सवाल है मैम। एक तो एलपीजी बुकिंग और डिलीवरी का डाटा आपने देना बिल्कुल बंद कर दिया, तो हमें पता नहीं चल पा रहा है कि कितनी बुकिंग्स हो रही है, कितनी डिलीवरीज हो रही हैं। अगर आप वो डाटा दे पाए तो। दूसरा, एक प्राइवेट रिफाइनर और रिटेलर ने अपने प्राइजेस बढ़ा दिए हैं, तो अप्रोक्सीमेटली मुझे लगता है कि 10% का कैटर करती है दो कंपनियाँ प्राइवेट की, तो दैट डिमांड विल शिफ्ट टू द PSUs. तो विल दे बी एबल टू कैटर दैट डिमांड? 184. Sapna Das from CNBC TV 18. 2 to 3 quick questions. So one, of course, that there are reports that the Russian ports of Primorsk and one more of them have stopped operations due to Ukrainian strikes. Probably MEA can take this up, sir. These two ports are responsible for about 80% of our oil imports from Russia. So is there going to be a likely impact on the Indian supplies? That's one. And of course, in terms of the increase or rather the levy of export duty on ATF, how will this impact the OMCs from taking their own decision in terms of the domestic pricing, which will change from April 1? Also, does it mean that this is a return of the windfall tax? Because there the upstream companies are also impacted, which is not the case as of now. So kindly explain. And last one, of course, give and take the overall revenue implication, if any, sir, at this point in time. Thank you. 238. Hi, ma'am. Danish Anand from NDTV Profit. Is India thinking of any kind of energy conservation? And I'm asking this to you on the backdrop of a lot of rumors around the lockdown and things like that. Start. सबसे पहले तो ऐसा कोई डिसीजन नहीं है कि लॉकडाउन लिया जाएगा. सो दिस इज़ अ र्यूमर. प्लीज़ मेक इट क्लियर टू एवरीबडी, लॉकडाउन की स्थिति नहीं है और ऐसा कोई विचार भी नहीं किया गया है. सो इन वेरी क्लियर टर्म्स आई वांट टू रिट्रेट, देयर इज़ नो सिचुएशन लाइक लॉकडाउन. नो डिसीजन हैज़ बीन टेकन. इट इज़ नॉट इवन अंडर कंसिडरेशन. 1. HMEL
बारमेर रिफाइनरी. सो बारमेर रिफाइनरी बहुत एडवांस स्टेज में है एंड we hope to see it coming into full function shortly. So that's two. LPG booking data and delivery data. Delivery data is absolutely normal. Yesterday it was 54 lakhs and the booking was close to 60 lakhs, 60 or 61 lakhs. कुछ रिटेल आउटलेट्स में ड्राई आउट हुआ है, आपने पूछा उसकी डिमांड, उसे हम कैसे करेंगे. इसके अलावा इसी से मिलता जुलता सवाल था कि कुछ पार्शियल ड्राई आउट्स इन सर्टेन एरियाज. Precisely for this reason, I have requested on the cost of repetition 2-3 times. मैंने 2-3 बार आप लोगों के माध्यम से देशवासियों से अपील की है, प्रार्थना की है कि कृपया पैनिक बाइंग न करें, र्यूमर्स पर, अफवाहों पर विश्वास न करें. हमारे पास 1 लाख पेट्रोल पंप हैं. 1 लाख पेट्रोल पंप में से 91,000 से ज़्यादा हमारी पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के पेट्रोल पंप हैं. सफिशिएंट प्रोडक्ट हर जगह अवेलेबल है, पेट्रोल पंप पर भी अवेलेबल है, हमारे टर्मिनल्स पर भी अवेलेबल है, हमारी रिफाइनरीज़ 100% और उससे भी अधिक कैपेसिटी पर चल रही हैं. कहीं कोई शॉर्टेज नहीं है. आप जैसा कह रहे हैं कि कुछ प्राइवेट का जो आप बोल रहे हैं, वी विल गेट इट वेरीफाइड एंड एवरीबडी इज़ अंडर द ऑब्लिगेशन टू सप्लाई फ्यूल टू द कंज्यूमर्स. इसके अलावा डीज़ल का आपने इंडस्ट्रियल डीज़ल बोला. एक्चुअली हमारे 2 तरह के पेट्रोल पंप होते हैं, एक सादे आम जनता के लिए और दूसरे कंज्यूमर पंप्स होते हैं. सो कंज्यूमर पंप्स किसी इंडस्ट्री के पास हो सकता है, किसी कोऑपरेटिव के पास हो सकता है. तो जनरली आमतौर पर जो कंज्यूमर पंप हैं उनके कंज्यूमर्स को डिस्करेज किया जाता है रिटेल आउटलेट पर जाने के लिए. बट ऐसा कोई डाटा नहीं होता है कि जहां पर हर एक ट्रक का नंबर नोट किया जा सके. आपने कहा 2 मंथ का स्टॉक पेट्रोल, डीजल, एलपीजी. 2 मंथ तो मैंने कम बोला है, 2 मंथ का तो सप्लाईज हैव बीन एश्योर्ड. इसके अलावा we have the supplies in our refineries, we have the supplies in our terminals, we also have, in our pipelines, the products are there. So we have sufficient product with us. I think I have answered all your questions. Thank you. Just to add, all of you may kindly look at the Petroleum Minister's tweet today morning on the lockdown. He has made a very clear-cut statement, and I would like to quote from it. India has consistently demonstrated resilience in the face of global uncertainties, and we will continue to act in a timely, proactive, and coordinated manner. Rumors of a lockdown are completely false. Let me state this clearly. There is no such proposal under the consideration by the Government of India. In such cases, it is important that we remain calm, responsible, and united. Attempts to spread rumors and create panic in such a situation are irresponsible and harmful. This is a tweet he has put out in the morning, and I would like all of you to please carry this to all the people in the country. All right. I'll answer the bunch of questions that were directed regarding revenue foregone or revenue gain in relation to the measures. To again state very emphatically, if you look at aviation turbine fuel, it is a very critical component, and several refineries in India procure this ATF crude from the international market. They refine it and they supply it both domestically as well as for export. Now, to prioritize the domestic availability of ATF, the excise duty rates on exports have been increased. This will incentivize greater supply of ATF to the domestic market and ensure the adequate availability of ATF within the country. The revenue gain on account of the proposal for imposition of this duty on exports on diesel and ATF is expected to be around rupees 1,500 crores
in a fortnight. And as I said earlier, the situation will be reviewed in a fortnight. Now coming to the second proposal, which is the proposal for lowering of the excise duty by about rupees 10 on both petrol and diesel. These steps, of course, have been taken to reduce the under-recoveries for the oil marketing companies. The revenue implication has to be seen in the overall context of the prevailing situation. And for a fortnight, the back-of-envelope calculation is roughly in the range of around 7,000 crores. Yes. So, but then, as I said earlier, the situation is dynamic. So the revenue implication has to be understood not within a fortnight, but as we go ahead in a larger time frame. So a 7,000 loss and an offset of 1,500 crores on the positive side on exports is the figure that I would have. You had a few other questions specifically related to the notification. I'll ask my colleague, Mr. Kandhari, the GSTRU, to answer those questions. For the fortnight. On petrol and diesel, yes. Thank you, sir. So there were a few questions on the notifications, and I'll be happy to answer them. And the first one that we had was, why are the rates on ATF different from that on diesel? So the methodology that we use is that we have the international crude oil prices and the international prices of petrol, diesel, as well as ATF. And these rates are determined based on these prevailing prices. So these keep changing, and as my sir mentioned, that we will be monitoring these on a fortnightly basis. So these will be monitored. The second question was on a specific notification on 10/2026. Since these are technical, I would be very happy to meet you after this press briefing and explain to you the implications. Third question we received was about a DGFT notification, which mandates that certain amount of exports be diverted to the domestic market. This issue mainly pertains to the Department of Commerce, but in my understanding, the notification still applies. So I hope that answers the questions. Yeah. Yeah, so I believe the terminology that you're using about windfall tax was the one that was used earlier in post-COVID in 2022. We don't have any excise duty on crude in this proposal as of now. So to a friend from the Hindu, what I would like to add is that we continue to be in touch with concerned countries for safe transit of our ships. We continue with these efforts. As you know, that 4 of our ships that were laden with LPG, they have transited safely through Strait of Hormuz and have come to India, and our efforts continue. There again, we continue with our efforts to source our energy products and requirements from diversified sources. Regarding one of the questions that mandated domestic sales, so that notification is still in force. As per that notification, all the domestic refiners have to sell 50% of the exported petrol and 30% of exported diesel in the domestic market. Pardon, please? The question on safe passage has been partly answered by a spokesperson from the MEA. As you know, I have informed the media earlier also. We have 5 carriers in the Persian Gulf which are loaded with LPG cargo, Indian flag vessels. One is in empty ballast, and it is likely to be going out for loading of cargo. And safe passage, as informed, that all efforts are on to ensure that passage is always safe. That is stage we have not reached now. Thank you very much for joining us. Namaskar. Dhanyavad. Thank you. Short.
सीधा प्रसारण आप अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता का देख रहे थे और इसमें एक एक सवाल का सभी मंत्रालय जो संबंधित मंत्रालय हैं उससे जुड़े बड़े अधिकारियों ने जवाब दिया। और जो कुछ बड़ी बातें आप लगातार वैसे देख रहे थे, लेकिन जो कुछ बड़ी बातें कहीं से कोई भी सूचना नहीं है या कोई योजना नहीं है लॉकडाउन की। ये सबसे बड़ी बात इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताई गई कि ये जो अफवाह पूरे देश में या कुछ राज्यों में, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री भी फैला रही हैं, ये इस पर साफ कर दिया गया है कि कहीं कोई योजना नहीं है, कहीं कोई विचार नहीं है लॉकडाउन की। उसके बाद बाकी चीज़ों के बारे में भी कि तेल और गैस की कितनी आपूर्ति है, कितनी उपलब्धता है, साथ ही सरकार किस तरह के कदम उठा रही है। एक्साइज ड्यूटी भी कम की गई है पेट्रोल पर, डीजल पर, और सरकार लगातार नज़र बनाए हुए है, लगातार बाहर से तेल, गैस सब कुछ आ रहे हैं। इसके बारे में सरकार ने जानकारी दी और विशेष रूप से अफवाहों से बचने के बारे में जानकारी दी। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो सबसे पहले इसी मुद्दे पर करेंगे बात आज के इस वक्त में। रामनवमी, याद आती है वो मर्यादा, वो जिम्मेदारी और वो विश्वास जो हर मजबूत निर्माण की नींव बनते हैं। मोंगिया स्टील, विश्वास की मजबूत नींव। रामनवमी की शुभकामनाएं। टर 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 सिस्टर बीना का मैसेज आया है, अर्जेंट। लिखा है मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर, तुरंत भेज दीजिए प्लीज। सिस्टर बीना, मैं पहले सिस्टर बीना को फोन करके पूछूंगी फिर भेजूंगी, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। वेल डन डॉक्टर। यूपीआई कहता है अगर पहचान के व्यक्ति से भी ऐसे मैसेज आए तो हो सकता है कि उनके मैसेजिंग ऐप हैक्ड हो। तो पहले नॉर्मल कॉल करके चेक करो और कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं इस वक्त, और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता दिखाया, बहुत कुछ बड़ी बातें उसमें साफ कर दी गई हैं। इसी पर आज सबसे पहले हम बात भी करने वाले हैं कि पश्चिम एशिया संकट के बीच क्या अपने देश में एंटी मोदी टूल किट्स अफवाह फैला रहे हैं क्या? ईरान, अमेरिका और इजराइल की जंग खत्म होने की कोई तस्वीर फिलहाल दिख तो नहीं रही है। शांति प्रस्ताव और शर्तों को एक दूसरे देश ठुकराते हुए नजर आ रहे हैं दोनों पक्ष। तो वहीं संकट की इस स्थिति में तेल और गैस की जो प्रबंधन है उसके कुशल प्रबंधन के बावजूद अफवाह के बाजार को गर्म करने में अपने देश के अंदर कुछ लोग कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। संसद के मौजूदा सत्र में लोकसभा और राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद पश्चिम एशिया संकट पर बयान दिया और कहा कि सरकार युद्ध के असर को न्यूनतम यानी कम से कम करने के लिए ठोस उपाय करने में जुटी हुई है। और इसी रणनीति के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान भी किया था कि सभी राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर टीम इंडिया के रूप में काम करें। इस बीच केंद्र सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत देते हुए आज पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में भारी कटौती कर दी है। पेट्रोल और डीजल दोनों पर 10-10 रुपए प्रति लीटर की कमी की गई है। इसके बाद पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी अब घटकर 3 रुपए प्रति लीटर रह गई है, जबकि डीजल पर तो इसको पूरी तरह से शून्य कर दिया गया है। वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच केंद्र सरकार का ये फैसला अभूतपूर्व माना जा सकता है, लेकिन संकट की इस घड़ी में भी विपक्ष की सियासत अफवाह फैलाने वाले गिरोह के टूल किट का हिस्सा बनते हुए साफ नजर आ रही है। केंद्र सरकार ने ईरान और इजराइल अमेरिका युद्ध के कारण लॉकडाउन की अफवाहों का भी जोरदार खंडन किया है। अभी भी हम आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे थे, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने खुद कहा कि लॉकडाउन की अफवाह बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के पास तेल के पर्याप्त भंडार है और गैस की आपूर्ति निर्बाध रखने की पूरी व्यवस्था भी है। वेस्ट एशिया संकट पर दुनिया की बदलती तस्वीर और भारत सरकार की स्थिति से निपटने की तैयारी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात करने का कार्यक्रम भी रखा है और आज ही ये चर्चा करेंगे वो कि कैसे युद्ध के संभावित दुष्प्रभावों से आम लोगों के हितों को सुरक्षित रखा जा सके। हालांकि जहां चुनाव है वहां राज्यों के मुख्य सचिव से कैबिनेट सेक्रेटरी अलग से बात कर लेंगे।
तो पश्चिम एशिया संकट के चलते ईंधन आपूर्ति में आई कमी के बीच केंद्र सरकार ने उद्योगों को राहत देते हुए कमर्शियल एलपीजी की भी अब सप्लाई बढ़ा दी है। अब राज्यों को संकट से पहले के स्तर का 70% तक एलपीजी आवंटन मिलेगा, जिससे कई उद्योगों और होटलों को बिल्कुल सीधी मदद मिलेगी। हालात को संभालने में सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। उधर हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर जहाजों की आवाजाही बंद होने से सप्लाई चेन टूटने की स्थिति पूरी दुनिया को परेशान तो कर रखी है, लेकिन ईरान से आई एक गुड न्यूज, अच्छी खबर ने भारत में तेल गैस को लेकर फैलाए जा रहे अफवाह का जवाब दिया है। ईरान ने बड़ा ऐलान करते हुए भारत, चीन और रूस को अपना साथी बताया। ईरान ने कहा, हमारे दोस्तों के लिए गैस और तेल की आपूर्ति नहीं रुकेगी। कूटनीतिक तौर पर सरकार को घेरने में लगे विपक्षी दलों को भी शायद ये खबर सुनकर संतोष होगा। हालांकि सरकार ने कल ऑल पार्टी मीटिंग यानी सर्वदलीय बैठक भी रखी थी और उसमें सारी जानकारी भी दी थी। खुद संसदीय कार्य मंत्री, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का कहना है कि पीएम की हर स्थिति पर नजर है, लेकिन विपक्ष अफवाहें फैला रहा है। ये सब कौन अफवाहें उड़ाते हैं? प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ तौर से बताया था कि पैनिक नहीं होना है, जमाखोरियों को चेतावनी दिया है, राज्य सरकारों को आह्वान किया है कि कोई इसमें होर्डिंग ना करे, पैनिक क्रिएट ना करे। भारत सरकार पूरी तरह से स्थिति का नियंत्रण में पूरा रखा हुआ है और आम लोगों को तकलीफ नहीं होने के लिए टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करते हैं। वहीं कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी ने कहा कि सरकार कभी भी अपने जेब से तो राजस्व नहीं देती। जो राजस्व आता है वो लोगों की जेब से ही तो आता है। जो लोग टैक्स देते हैं उसी से ही तो सरकार का राजस्व आता है। तो अगर सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की है तो कोई सरकार अपनी जेब से पैसा थोड़ी दे रही है। हरदीप सिंह पुरी जी का बयान तो ऐसा है जैसे कि वो अपनी जेब से निकाल के पैसा दे रहे हो। सरकार कभी जेब से पैसा नहीं देती, लोगों का ही पैसा होता है। बात नीति की है कि किस तरह से नीति बनाई जा रही है, किस तरह से निपटा जा रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि एक्सपोर्ट पर कर बढ़ाने से कंपनी भारत में ही रहेगी और देश में इसकी उपलब्धता भी रहेगी। भारत में बहुत सारे रिफाइनरीज हैं जो विदेश से माल खरीद करके इधर उसको रिफाइन करके विदेश को एक्सपोर्ट भी करते हैं, हमें भी देते हैं। मगर वो एक्सपोर्ट के ऊपर हमने अभी ज़्यादा रेट बढ़ाया, एक्साइज ड्यूटी बढ़ाया, जिससे वो एक्सपोर्ट ना करते हुए भारत में ही उनको सेल करेंगे, जिससे भारत में अवेलेबिलिटी का भरपूर अवेलेबिलिटी रहेंगे, लोगों को कमी महसूस नहीं होने देंगे। और वहीं शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने दावा किया है कि सरकार पेट्रोल डीजल के कारण लॉकडाउन लगाने वाली है। जिस तरह से बड़ी बड़ी कतार पेट्रोल, डीजल, रेशन और रॉकेल के लिए भी लगी है, केरोसिन के लिए, और जिस तरह से सरकार में जोरदार हलचल चल रही है, तो लगता है मोदी जी फिर एक बार 10-15 दिन के लिए डीजल और पेट्रोल की बचत करने के लिए लॉकडाउन लगा सकते हैं। तो उधर ममता बनर्जी और इधर संजय राउत कह रहे हैं लॉकडाउन लगने वाला है, जबकि सरकार पूरी तरह से खंडन कर रही है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता भी और साथ में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी यहाँ स्टूडियो में जुड़े हैं और हमारे संवाददाता राजेश राज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर बात करने के लिए। पहले सीधे चलते हैं राजेश के पास। राजेश हमारे साथ जुड़ गए। राजेश बताइए, अभी भी अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता हुई, ठीक, उसमें सब कुछ जानकारी दी गई। इसके पहले पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी बिल्कुल साफ कह चुके हैं कि लॉकडाउन की कहीं कोई योजना नहीं है, कहीं विचार ही नहीं है लॉकडाउन की, ऐसी कोई स्थिति ही नहीं है। इससे कितनी गुणी ज्यादा बुरी स्थिति दुनिया के कई देशों में, लेकिन भारत में नहीं। इसके बावजूद इस चीज को बार बार लोगों के मन में डालना, और जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग इसको मान करके पेट्रोल पंप पे, गैस एजेंसी पे जाकर पहुंच जाते हैं। सरकार ने अब फिर से साफ किया है राजेश, क्या इससे लोगों पर असर पड़ेगा
आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में और ज्यादा स्थिति साफ कर दी है सरकार ने और पेट्रोलियम मंत्री ने। देखिए लालचंद्र, जहां तक इस अफवाह का सवाल है तो हम कंप्यूटर युग के बाद अब सोशल मीडिया के दौर में जी रहे हैं, जहां पर की भ्रामक खबरों के लिए पूरी पर्याप्त जगह है। सोशल मीडिया पर बहुत सारी अच्छी खबरें भी चलती हैं, लेकिन भ्रामक खबरों के लिए पर्याप्त जगह होने की वजह से कई बार धुंध की स्थिति दिखाई पड़ती है। लेकिन इस धुंधली तस्वीर को भारत सरकार ने बिल्कुल साफ कर दिया है और कहा है कि किसी भी तरह के भ्रामक खबरों के लिए कोई जगह नहीं है। जनता से अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील करती हुई संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने साफ कर दिया है कि लॉकडाउन जैसी कोई स्थिति नहीं है और जनता को अफवाह में से बचने की सलाह भी उन्होंने दी है। और हम भी देश के सबसे बड़े टेलीविजन नेटवर्क डीडी न्यूज से अपने दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि वो इस तरह की खबरों पर बिल्कुल ध्यान न दें। सरकार पूरी तौर पर मुस्तैद है और पार्टी बैठक के बाद आज केंद्रीय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संवाद स्थापित किया जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको भी मजबूत होता हुआ हम देख पाएंगे और राज्यों में कालाबाजारियों और जमाखोरों के खिलाफ जो कार्रवाइयां हैं उसके निर्देश प्रधानमंत्री पहले ही दे चुके हैं। जनता से अपील कर चुके हैं कि वो अफवाहों का पर ध्यान न दें। और आपको याद होगा कि कोरोना काल में भी जब अफवाहों का बाजार गर्म होता था लालचंद्र, तो कई बार आपने देखा कि जनता जो है दिल्ली से पूर्वांचल की तरफ, बिहार की तरफ जो है वो पैदल कूच कर रही थी, लेकिन उसको भारत सरकार ने पूरी मुस्तैदी और तत्परता से उन स्थितियों से निजात दिलाते हुए देश में कोरोना की जंग जो है वो बेहतरीन तरीके से लड़ने का काम किया। तो मुझे लगता है कि उससे बड़ा ये संकट नहीं है, सिर्फ सतर्क रहने की जरूरत है। जमाखोरी और जो कालाबाजारी पर रोक लगाने की निपटने की जरूरत है और जनता अगर चुस्त दुरुस्त और मुस्तैद रहेगी तो मुझे लगता है कि इन भ्रामक खबरों के लिए कोई जगह नहीं है। सरकार ने, किरण रिजिजू ने, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने, तमाम लोगों ने, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक्साइज ड्यूटी कम की है उसकी भी सराहना की है और इससे यह स्पष्ट हो चला है कि पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में भले ही दाम घटे ना घटे लेकिन दाम बढ़ेंगे नहीं, इसकी मुस्तैदी सरकार ने दिखाई है। क्योंकि प्राइवेट जो कंपनियां थी वो दाम बढ़ाने की फिराक में थी, लेकिन भारत सरकार ने धुंध की स्थिति को साफ कर दिया है और पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई भी बढ़ोतरी नहीं होगी, सिर्फ अफवाह से बचने की सलाह दी जा रही है। बिल्कुल विनोद जी जो बात राजेश कह रहे हैं और इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी विनोद जी को जरा स्क्रीन पर लीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात कही गई है। लेकिन चाहे ऑल पार्टी मीटिंग हो या फिर मुख्यमंत्रियों के साथ वार्ता, एक तरफ देखिए कुछ पार्टियां क्या करती हैं कि सर्वदलीय बैठक में आएंगी नहीं और उधर जाकर कहेंगी कि लॉकडाउन लगने वाला है। ऐसे में विनोद जी ये क्या मतलब, मुझे तो लगता है कि एक रस्साकशी चल रही है। एक तरफ सरकार के सामने चुनौती है कि लोगों को अफवाह से बचाएं और दूसरी तरफ जिनको अफवाह फैलाना है, जिसको हम कहते हैं टूल किट्स, वो अपने काम में पूरी तरह लगा हुआ है, दनादन अपने काम में लगा हुआ है। लालजी, अभी आपने अपने रिपोर्ट में मनीष तिवारी का भी बाइट सुनाया था। पूर्व केंद्रीय सूचना मंत्री भी हैं, कांग्रेस पार्टी के कद्दावर लीडर भी है। अब वो कह रहे हैं कि ये अगर एक्साइज ड्यूटी में भारत सरकार ने कम किया है तो क्या वो अपने पॉकेट से दे रही है। तो मनीष तिवारी को याद दिलाना चाहिए, कब पॉकेट से देती है? तो मनीष तिवारी को याद दिलाना चाहिए कि अभी एक दिन पहले ही उनकी ही हिमाचल की सरकार है, उन्होंने अपने पेट्रोल और डीजल पे 5 रुपये पर लीटर बढ़ा दिया है जी। तो क्या वो अपने पॉकेट से दे सकते थे? अपने पॉकेट में रखेंगे वो 5 रुपए जो बढ़ा है, 5 रुपया जो रख रहे हैं। सवाल नहीं है, सवाल ये है कि एक पूरा टूल किट्स का वो हिस्सा बन गया है पॉलिटिकल पार्टीज का। अभी आप देखिए तो जो आप अभी संजय राउत का चला रहे थे बाइट और ये सारे लोगों का देखिए तो वो वही चीज कर रहे हैं जिससे लोगों में एक डर फैले। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बार बार संसद के इस अभी एक पार्लियामेंट का जो सेशन है, मौजूदा सत्र है, उसमें राज्यसभा में और लोकसभा में उन्होंने ये बात कही थी कि ये हम एक टीम इंडिया के स्पिरिट से काम करें जी। और आज जो राज्य के मुख्यमंत्रियों से जो उनकी बात हो रही है, जो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सारे राज्य के मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, वो टीम इंडिया का स्पिरिट है कि भारत को तैयार होना है। जो मिडिल ईस्ट की जो स्थिति है, उस मिडिल की स्थिति में यह कोई कल्पना नहीं कर सकता कि आगे क्या पॉसिबिलिटीज होगी, किस तरह का ये वार का जो बना हुआ सिचुएशन
वो किस मोड़ पे जाएगा। इस स्थिति से निपटने के लिए और जनता पे कोई इसका भार नहीं पड़े, जनता की सहूलियत किस तरह से हम दे सकते हैं इस चैलेंज में, वो टीम इंडिया की बात कर रहे थे पीएम ने। और जब वो टीम इंडिया की बात कर रहे थे तो उन्होंने एक इंस्टेंस दिखाया कि भारत कैसे एक टीम इंडिया बनके कोरोना जैसे मुश्किल हालातों पे काबू पाया है। ये भारत ने करके दिखाया है। और इसको किस तरह से इंटरप्रिटेशन है और इसको किस तरह से पहले ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, संजय राउत, अखिलेश यादव कहते हैं कि मैं तो 10 दिन पहले ही चूल्हा, मिट्टी का चूल्हा घर ले आओ। अब ये अखिलेश यादव को बताए कोई कि वो जो आलीशान महल बनाया हुआ है क्या उसमें उन्होंने मिट्टी का चूल्हा रख लिया है? ये किसको भड़बा रहे हैं? उसका धुआं किधर से निकालने की व्यवस्था उन्होंने की? ये जो चीजें हो रही है आज दुनिया की हालत देखिए, जो इंटर मिनिस्ट्रियल प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी हुआ था ब्रीफिंग, उसमें देखिए किस तरह के अब सारे ऑफिसर ने क्लियर किया है। उन्होंने किस तरह से क्लियर किया है कि पिछले एक हफ्ते में दुनिया में 70 बैरल का जो डॉलर है वो कैसे 100 के पार कर गया, $100 पार कर गया है। 1.5 गुना और भारत ने कैसे इस चीज को कंट्रोल किया है कि भारत अपने एक्साइज ड्यूटी को कम किया है ताकि जनता को कोई इसकी परेशानी नहीं हो, और जनता को इसके लिए कोई ऐसा नहीं हो कि इसका भार उठाना पड़े। ये चीजें बताने के लिए कि इस देश को, ये हम लोग कल भी इसकी चर्चा कर रहे थे, जो भारत सरकार ने क्या पहल की है। भारत सरकार सप्लाई चेन को कंटिन्यू रखने के लिए पहले 21-22 कंट्री था, तो आज के दिन में 41 देशों से भारत में डीजल, पेट्रोल और क्रूड ऑयल आ रहे हैं। 41 देश से। भारत का अभी देखिए कि 20,000 किलोमीटर दूर अर्जेंटीना से एलपीजी के कंटेनर में आ रहे हैं। भारत का अभी देखिए कि खुद ईरान भी अपनी तरफ से इस चीज की पेशकश कर रहा है। जैसे जब उस पे ये हटा है, सैंक्शन अमेरिका ने कम किया है, तो वो भी अपनी तरफ से एक पेशकश की बात चल रही है। इतने सारे प्रयास, इतने फ्रंट पे भारत सरकार कोशिशें कर रही है। और अब भारत का विपक्ष कहीं कुंडी के एक बात कर रहा है, कहीं मिट्टी का चूल्हा लगाने की बात कर रहा है, ममता बनर्जी लॉकडाउन की बात कर रही है, संजय राउत कुछ और कह रहे हैं। ये जो चीजें हैं ये दिखाता है जो योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अगर इस मामले में कोई अफवाह करते हैं तो वो कितना राष्ट्रभक्त है और कितना राष्ट्रद्रोही है। ये चीजें जनता को तय करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये तय करनी पड़ेगी। और प्रधानमंत्री ने सिर्फ एक तुलना की थी कि कुछ ऐसे विशेष हालात होते हैं, उसी में उन्होंने कोरोना काल का नाम लिया था। बस लॉकडाउन 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 करके लोग बस अफवाहों का बाजार गर्म करने लगे। फिलहाल शुक्रिया राजेश आपका जुड़ने के लिए। और विनोद जी आप बने रहिएगा, क्योंकि आगे चलकर पश्चिम बंगाल में आज जो दूसरी पूरक लिस्ट आने वाली है उस पर हम करने वाले हैं खास चर्चा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। रामनवमी, याद आती है वो मर्यादा, वो जिम्मेदारी और वो विश्वास जो हर मजबूत निर्माण की नींव बनते हैं। मोंगिया स्टील, विश्वास की मजबूत नींव। रामनवमी की शुभकामनाएं। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त। और जैसा ब्रेक पर जाने से पहले बताया था, आप बात करेंगे पश्चिम बंगाल में जो कुछ चल रहा है उसको लेकर, क्योंकि आज वहां पर दूसरी पूरक लिस्ट एसआईआर वाली आने वाली है, सप्लीमेंट्री लिस्ट। लेकिन इस बीच पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक अलग ही लेवल पर खेल रही है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जैसा कि हम जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में जो दूसरी लिस्ट है वो आने वाली, पश्चिम बंगाल में नेताओं की जुबानी जंग चल रही है। चुनावी जंग में अपनी पार्टी टीएमसी को फिर से सत्ता में लाने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार हमलावर हैं। चुनाव आयोग को निशाना बनाकर ममता पहले वोट कटने का मुद्दा ममता बनर्जी ने बनाया, लेकिन जनता की बेरुखी के बाद अब मुद्दा जो है तेल और गैस सप्लाई को बना रही हैं। ईरान अमेरिका युद्ध के बीच तेल और गैस की स्थिति पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ जो वर्चुअल मीटिंग है वो होने वाली है, ताकि टीम इंडिया की तरह सभी जनता की मुश्किलों को कम कर सकें। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लोगों को लॉकडाउन के खतरे का डर दिखा रही हैं। ममता बनर्जी ने अपनी चुनावी सभाओं में देश में संभावित लॉकडाउन की आशंका जताई और कहा कि ये उन्हें
या उनकी पार्टी को राज्य में विधानसभा चुनाव में बीजेपी से लड़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। पिछले चुनाव में ममता सीए को लेकर लोगों को आक्रोशित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। इस चुनाव में लोगों को एसआईआर के कारण नागरिकता खोने और अब गैस की किल्लत का डर दिखा रही हैं। लेकिन पिछले 15 सालों में उनकी जो मां माटी मानुस का नारा है उनका, वो इस चुनाव में लग रहा है फीका पड़ गया है। उधर बीजेपी का दावा है कि हार की हताशा में ममता अनाप शनाप बयान दे रही हैं, लेकिन लोगों को उनका हर चुनावी रणनीति पता है। अल्पसंख्यक वोट बैंक के बदलते समीकरण, छोटे मुस्लिम संगठन, उत्तर बंगाल में कांग्रेस की सक्रियता, इन सभी चीजों ने उन्हें गैर एनडीए दलों में एकता का समर्थन मांगने के लिए अब मजबूर कर दिया है। एसआईआर की पहली पूरक लिस्ट पहले आ चुकी है, अब आज दूसरी सप्लीमेंट्री लिस्ट आने की उम्मीद है। चुनाव आयोग ने कलकत्ता हाईकोर्ट से अपील की है कि आयोग हर दिन पूरक लिस्ट प्रकाशित कर सकता है, इसकी अनुमति दे दें। जाहिर है, नामांकन से पहले सुनवाई की प्रक्रिया में जो जेन्युइन वोटर्स हैं उनका नाम पहले प्रकाशित हो जाए। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर न्यायिक अधिकारी कर ही रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ममता के निशाने पर तो हमेशा सिर्फ चुनाव आयोग है और लगातार वो निशाने पर रखे हुए हैं। तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का दावा है कि सरकार ने नोटबंदी की, वोटबंदी की और अब लॉकडाउन भी लगाने वाली है। লকডাউন টকডাউন করবে কিনা ভাবছে কিনা জানি না, করলে করবেন। লকডাউন করে মানুষকে ঘরবন্দি করে রাখবেন, মানুষকে ঘরবন্দি করবেন, মানুষকে নোটবন্দি করবেন, মানুষকে ভোটবন্দি করবেন, মানুষের নাম কেটে দেবেন। জেনে রাখবেন, কোভিডের সময় লকডাউন ছিল, আমরা 21 সালে কোভিডের মধ্যে যদি লড়াই করতে পারি, যে কোনো পরিস্থিতির মোকাবিলা করে লড়াই করবার জন্য আমরা রাজি আছি। इस बार भाजपा नेता और पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष शामिक भट्टाचार्य जी ने चुटकी ली और कहा 4 मई दीदी गई। पूरा हिंदुस्तान में इस बात तैयार हो गया, सारे लोग बोल रहे हैं 4 मई दीदी गई। तो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ममता जी बहुत सारे बातें बोल रहे हैं, और ईवीएम लेकर ममता जी को जो कहना है, बहुत लोग तो ऐसे भी सोच रहे हैं कि ईवीएम को बदलने का काम पश्चिम बंगाल सरकार भी पहले कर चुके थे। हम लोग इस बहस में जाना नहीं चाहते, जो बोलना है बोलने दीजिए। 2 महीना अभी भी है सरकार, ये 2 महीने में जो मन में आए बोलने दीजिए, लेकिन जाना तैयार है, तृणमूल चले गए। दोनों पक्षों के दावे हैं और कोशिशें भी हैं, लेकिन जमीन पर हालात कैसे हैं, इसी पर बात करने के लिए सौरभ दत्ता हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, साथ में सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और साथ में मोहम्मद एहतशामुल हक साहब हैं जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में मजबूती से बातें रखते हैं। पहले सीधे जमीन पर चलते हैं सौरभ दत्ता के पास। सौरभ, मुख्यमंत्री तो कह रही हैं, भले उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग में टीएमसी ना गई हो, आज पता नहीं राज्यों के मुख्यमंत्रियों में शायद वहां तो जो सेक्रेटरी हैं मुख्य सचिव उनके साथ ब्रीफिंग होगी क्योंकि चुनाव वाले राज्य हैं, लेकिन जरा ये बताइए कि जमीन पर जब ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि लॉकडाउन लगने वाला है, लोगों में आप किस तरह का वहां पर देख रहे हैं? क्योंकि बीजेपी निश्चित तौर पर अपने कार्यकर्ताओं के जरिए ये समझा रही है और कह भी रही है कि ममता बनर्जी तो ये शिगुफा छोड़ रही हैं चुनाव को देखते हुए। लाल जी, देखिए, बंगाल की जनता जब पहली बार इस मुद्दे को सामने ले आई ममता बनर्जी, तब से लेकर आज तक गैस की क्राइसिस को लेकर जिस तरह वो बोल रही है उतना जमीनी हकीकत है नहीं है। बंगाल की जनता भी मान रही है। असल में बंगाल की जनता कह रही है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी क्रोनोलॉजी फॉलो कर रही है। ये क्रोनोलॉजी क्या है? ये क्रोनोलॉजी 2021 में जब वो चुनाव मैदान में थी, तब उन्होंने जो 26,000 नौकरी गए थे उसका पक्ष लिया था और कहा था कि जिनके नौकरी चले गए, चाहे वो घोटाले के मामले में नौकरी गए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि उनका घर का क्या होगा, हम उनको जो कानूनी जो सहायता होती है वो देंगे, लॉयर देंगे, एडवोकेट देंगे। आज वो एसआईआर पर क्या कर रही है? जिनके नाम कटेंगे उनको हम अदालत पे वो चाहे लड़े, हम उनको एडवोकेट देंगे। मुद्दा अलग है, प्रोसेस सेम है।
यानी ममता बनर्जी इस बार भी कहीं ना कहीं इनका ये कौशल है कि पिछली बार जब एसएससी सब जानते थे कि मेरिट के हिसाब से जिनको नौकरी नहीं मिला उन्हीं का नौकरी गया है और अदालत के आदेश पर नौकरी गया है, फिर भी उन्होंने उनका पक्ष लिया जिनका नौकरी गया, जो गलत तरीके से नौकरी मिला था, और उनको कहा था कि हम आपको लॉयर देंगे कोर्ट में लड़ने के लिए। आज एसआईआर पे आप देख लीजिए, जिसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है उनका पक्ष ले रही है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो एक बड़ा वोट बैंक है और वो चाहती है कि वो जैसे तैसे होकर ये प्रोसेस से जुड़े रहे। सौरभ, मैं विनोद जी के पास जाऊं उससे पहले जरा ये भी कि आज दूसरी लिस्ट आने की संभावना है क्या, ये सप्लीमेंट्री लिस्ट? ये अभी तक चुनाव आयोग का जो कहना है, चुनाव आयोग के हवाले के जरिए, कि चुनाव आयोग का ये कहना है कि वो ई साइन होते ही जितने होते हैं देर रात तक जितना ई साइन होता है उसके बाद एक लिस्ट तो आज आनी है और इसके बाद हर दिन एक लिस्ट आनी है। ये चुनाव आयोग का कहना है कि वो ट्राइब्यूनल में भी जाना है। लौटता हूँ आपके पास, ठीक, लौटता हूँ आपके पास। विनोद जी, अब भी जैसा सौरभ भी बता रहे थे और हम पहले भी इस पर चर्चा कर चुके हैं कि ममता बनर्जी, देखिए जिसे कहते हैं ना कि इसको गोल पोस्ट को शिफ्ट करना, हाँ, तेल और गैस पर आ गई हैं। पहले एसआईआर, चुनाव आयोग, ये सब करके अब तेल और गैस पर वो आ रही हैं, लॉकडाउन तक बोल रही हैं। लॉकडाउन, मुझे लगता है पूरे देश में शायद पहली मुख्यमंत्री हैं जो लॉकडाउन की बात कर रही हैं, और किसी मुख्यमंत्री को मैंने बात करते हुए तो अभी तक नहीं सुना। क्या कोशिश है ममता बनर्जी की, विनोद जी? लाल जी, हम बचपन में हम लोग पढ़ते रहे हैं कि वो एक कहानी है कि भेड़िया आया, और इस तरह के झूठ से एक दिन भेड़िया जो के मामले में वो फैलाने वाला खबर जो था, तो उसको किस तरह का ये हादसा झेलना पड़ा। तो सवाल है कि ये भेड़िया आया की बात ममता बनर्जी हर चुनाव में करती है। बिल्कुल। और हर चुनाव में, इस चुनाव में आप देखिए 2026 का जो इलेक्शन कमीशन का ऐलान होने से पहले ही ममता बनर्जी का ये था झूठ का ये पूरा का पूरा कैंपेनिंग था कि ये एसआईआर नहीं, ये एनआरसी है जी। और ममता बनर्जी चाहती थी कि उनके 15 साल का जो एंटी इनकम्बेंसी है वो इनके इस कम से कम भ्रम की सियासत में वो गौन हो जाए, और ऐसा हुआ नहीं है। ममता बनर्जी अपने ही सभा में सिर्फ 23 लोगों को सब सामने में ले पाई थी कि जिनका वोट कटा है, ये ममता बनर्जी का दावा था। और वो 23 बार लोग कहाँ हैं वो आज तक पता नहीं है। तो आज अगर पश्चिम बंगाल में 73 लाख वोट कटने वाले हैं, कट गए हैं अभी तक, कट गए, हाँ। जो फर्स्ट लिस्ट का जो अभी तो और कट सकते हैं, और 73 लाख में अगर उनको 23 मिला और वो 23 गायब है, तो आप सोच लीजिए कि जनता में उनका एसआईआर एनआरसी का कितना इंपैक्ट हुआ। इसीलिए तेल गैस पर आ गई, चला गया। इसीलिए अब जो दूसरा इनका ये मुद्दा है जो ममता बनर्जी कल से उठा रही है, क्योंकि 2021 में जब वो चुनाव हुआ था बंगाल में, उस समय में कोविड था, और वो ये बात लोगों को डर दिखा रही है कि आप जितना वेस्ट एशिया का जो संकट है वो किसी तरह से बढ़ रहा है, तो भारत सरकार यहाँ लॉकडाउन लगा के यहाँ चुनाव रुकवा देगी। वो ये लोगों को डरा रही है कि ये चाहे लॉकडाउन लग जाए हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। तो ममता बनर्जी इस तरह की अफवाह फैला के सिर्फ वहां एक जन आक्रोश बढ़ाना चाहती है, वहां लोगों को सड़कों पर लाना चाहती है। तो ये सारा टैक्टिस लोग जानते हैं। मुझे नहीं लगता कि ममता बनर्जी का ये सारा टैक्टिस इस बार इस चुनाव में कामयाब होगा। ठीक है, तो शामुल हक साहब, पूरे देश में कुल मिलाकर के करीब करीब केंद्र शासित प्रदेश और राज्य मिला के 3 दर्जन के आसपास है। बताइए, सिर्फ एक मुख्यमंत्री अपने राज्य के लोगों को कह रही हैं कि लॉकडाउन लग सकता है। लोगों में जब इस तरह की घबराहट होगी है शामुल साहब, परेशानी किसको होगी? पश्चिम बंगाल की जनता को ही तो होगी। चुनाव अपनी जगह, राजनीति अपनी जगह, पश्चिम बंगाल के लोगों को परेशानी होगी कि नहीं अगर मुख्यमंत्री की बात सुन करके वो लोग लॉकडाउन की बात पर भरोसा कर लें, इस अफवाह पर भरोसा कर लें? तो देखिए लालचंद जी, सबसे बड़ी बात है कि हमारी नेत्री, आपने कहा कि 36 राज्यों यूनियन टेरिटरी मिला करके कोई भी एक आदमी या कोई भी एक मुख्यमंत्री इस तरह की बात नहीं कर रही, लेकिन आपकी पड़ता है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी क्यों? देखिए, मुख्यमंत्री भारत के इकलौती एक ऐसी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है जो जमीन से आती है और जमीन से वो चल कर बाकी 35 कहां से आते हैं? जमीन ही लेता है। बात सुनने की कोशिश की, समझिए पहली मैं आपको जो आपको डेट दे रहा हूँ, तो हमारे कहने का मतलब उनको जनता का फिक्र है, उनको हमारे 10.5 करोड़ जनता का फिक्र। आपने कहा कि जिस हिसाब से कि वो इस तरह के बोल रहे हैं, आज देखिए एसआईआर के माध्यम से केंद्र सरकार जो इस हिसाब से चुनाव आयोग के साथ मिल करके जिस हिसाब से षड्यंत्र रच रहा पश्चिम बंगाल की सत्ता को हासिल करने के लिए। अभी स्वामी भट्टाचार्य बोल रहे थे कि 4 मई जीती गई, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से
मैं दूरदर्शन जो भारत का सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ चैनल, मैं उनमें कहना चाहता हूँ कि 4 मई दीदी रहेगी और 4 मई चौथी मरतबा सरकार बनकर दीदी रहेगी। ये स्पष्ट हो, चाहे SIR हो, चाहे जिस तरह का भी काम कर ले, जनता हमारी जो है, जो भी 7 करोड़ 4 लाख वोटर थे, मैं तो कहता हूँ बीजेपी भी आज 7 करोड़ 7 करोड़ 4 लाख अगर वोटर है तो हमारे ममता बनर्जी के साथ में हम लोग बिल्कुल इत्मीनान है। लेकिन कोई भी लोग जिनके नागरिकता जिसमें लिए वोट करते हैं, उनके पीछे सरकार हमारी खड़ी है और उनके पीछे हमारे लोग खड़ी है। हाँ, उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट गए भी थे, सही बात। ठीक। मैं ये कह रहा हूं 4 मई को कौन जाएगा कौन रहेगा ये तो पश्चिम बंगाल की जनता पर छोड़ दीजिए, ठीक, उनको बढ़िया से वोट करने दीजिए, शांति से वो लोग तय कर लेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि उसके पहले की जो जिम्मेदारी बनती है कौशलकांत मिश्रा जी, बात पश्चिम बंगाल की भी है और पूरे देश की भी। जब इस तरह की अफवाह को लेकर के लोग उड़ने लगते हैं कि लॉकडाउन लगने वाला है, ऐसे में आपकी पार्टी, आपके कार्यकर्ताओं, आपकी इतनी बड़ी कार्यकर्ताओं, इतना बड़ा संगठन, उसकी भी भूमिका बनती है कि ऐसे अफवाहों से मुकाबला करें। बात बंगाल की चीफ मिनिस्टर की अगर की जाए तो आप देखिए, जिस तरह से ममता जी को आप लोग बहुत पहले से देख रहे हैं, वो अच्छी चीफ मिनिस्टर रही हैं और लेफ्ट की सरकार को हटा करके आई हैं। उन्होंने जो भी इलेक्शन लड़े, कभी इस तरह से बौखलाहट भरी नजर नहीं आ रही थी, कभी वो बिना स्ट्रेटजी के नहीं। अभी जिस तरीके से एक एक चीज पे गोल पोस्ट कर चेंज कर रही हैं, कभी इसकी बात करती हैं, कभी उसकी बात करती हैं, अब यहां तक हार की हताशा में डूब चुकी हैं कि वो लॉकडाउन की बात करने लगी हैं। तो इससे ये पता चलता है कि ममता जी ये मान चुकी हैं कि वो हारने वाली हैं, और जैसा कहा गया 4 मई दीदी गई, उन्हें वो दिख रहा है। आपको भी वही नहीं, वो तो ममता जी के एक्शन से नजर आ रहा है। मैं कह रहा हूं, आपको भी वही बात कह रहा हूं, पश्चिम बंगाल के लोगों पर छोड़ दीजिए, अभी इसको काउंटर कीजिए जो मुख्यमंत्री वहां लॉकडाउन की अफवाह फैला रही हैं, वो कैसे करेंगे सर? मैं उसी की तो बात कर रहा हूं। ये आया कहां से? ये आया यहां से कि ममता जी को पता है कि 4 मई दीदी गई तो उसके लिए वो कुछ भी कर, जैसे दिया बुझने के पहले बहुत फड़फड़ाता है, उसी तरीके से हार की हताशा में और तुष्टीकरण की पराकाष्ठा में ममता दीदी डूब गई हैं। उनका वो भी वक्तव्य याद रखिए कि उन्होंने ये कहा था ना कि एक समुदाय अगर सड़क पे आ गया तो क्या होगा, पूरे एक समुदाय को धमकी दे रही थी दूसरे समुदाय के दम पे। और जिस तरीके से SIR की प्रक्रिया में 63 लाख से ज्यादा लोगों के नाम कट गए हैं और आगे और भी कटेंगे, तो ममता जी को यकीन हो गया है कि वो हार रही हैं, इसलिए वो इस तरह से गोल पोस्ट चेंज कर रही हैं। मैं लौटता हूं और लौट करके बात ये भी करने वाला हूं कि पश्चिम बंगाल चुनाव में हिंसा की आशंका और उसके लिए चुनाव की तैयारी वो सब चल रही है, लेकिन थोड़ा बहुत ट्रेलर दिखना शुरू हो गया। इस पर बात करूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। रामनवमी, याद आती है वो मर्यादा, वो जिम्मेदारी और वो विश्वास जो हर मजबूत निर्माण की नींव बनते हैं। मोंगिया स्टील, विश्वास की मजबूत नींव। रामनवमी की शुभकामनाएं। टर 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 सिस्टर बीना का मैसेज आया है, अर्जेंट। लिखा है, मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर, तुरंत भेज दीजिए प्लीज। सिस्टर बीना, मैं पहले सिस्टर बीना को फोन करके पूछूंगी, फिर भेजूंगी, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। वेल डन डॉक्टर। UPI कहता है अगर पहचान के व्यक्ति से भी ऐसे मैसेज आए तो हो सकता है कि उनके मैसेजिंग ऐप हैक्ड हो, तो पहले नॉर्मल कॉल करके चेक करो और कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं DD न्यूज पर इस वक्त, और ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया कि पश्चिम बंगाल पर हम चर्चा कर रहे हैं और हम ये भी देख रहे हैं कि जो हिंसा की आशंका है उसको लेकर कुछ घटनाएं आनी शुरू हो गई हैं। सीधे सौरभ दत्ता के पास चलते हैं। सौरभ, जो हिंसा की खबर आई है पश्चिम बंगाल चुनाव से जुड़ी हुई, वो खबर दरअसल है क्या, उसकी सच्चाई क्या है, और ऐसी चीजें ना हो इसके लिए चुनाव आयोग तो सतर्क है, प्रशासन और वहां की जो सरकार है वो कितनी सतर्क है इस चीज को लेकर? ये रानाघाट दक्षिण कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक घटना है जहां पे पोलिंग जो ऑफिसर्स होते हैं, जो पोल ऑफिसर्स होते हैं, वो वहां के प्रशिक्षण हो रहा था, उनका ट्रेनिंग चल रहा था, और ट्रेनिंग चलने के वक्त
एक प्रोजेक्टर में पहला जो प्रोजेक्टर में जो दिखाया जा रहा था उसमें सीएम ममता बनर्जी के तस्वीर के साथ एक वीडियो था जिसमें दीघा का जो जगन्नाथ जो धाम कहती है टीएमसी गवर्नमेंट, वो जो दिखाया जा रहा था। उसके चलते पोलिंग ऑफिसर ने कहा कि अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, तो इस वक्त क्यों सीएम की तस्वीर दिखाया जा रहा है, उनका प्रोजेक्ट दिखाया जा रहा है। रानाघाट दक्षिण ये अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो तभी एक व्यक्ति ने आकर उनका ये आरोप है कि 2 व्यक्ति थे जिन पोलिंग ऑफिसर का हम तस्वीर दिखा रहे हैं हमारे वो वीडियो अभी हम दिखा भी रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। उनको मारा गया है और उनको खून भी निकला है माथा से। तो ये यही बात है कि ये तो सभी अभी तो सिर्फ ट्रेनिंग चल रहा है। अगर और ये है आरोपी जो तस्वीर अभी आया, तो अभी तो ट्रेनिंग चल रहा है। अभी अगर ये हाल हुआ तो पोल डे के वक्त क्या होगा। ठीक, ये सवाल जो आपने छोड़ा है ना, ये सवाल जो आपने छोड़ा, ये सवाल सीधे मैं विनोद जी के पास लेकर चलता हूँ। विनोद जी, अभी आप सौरभ ने वो वीडियो भी सौरभ ने भेजा है, आपने देखा ही। अब सवाल ये है कि अगर इस तरह की घटनाएं आएंगी कैसे निपटा जाएगा इससे? लाल जी, जो प्री पोल और पोस्ट पोल वायलेंस का पश्चिम बंगाल का रिकॉर्ड है, और इस बार जो चुनाव आयोग का ये कमिटमेंट है भयमुक्त चुनाव, और उसमें आप देखिए कि जब चीफ सेक्रेटरी से लेके और डीएम से लेके और आरओ तक अगर वहाँ पे ट्रांसफर के होने शुरू हुए थे, तो ऐसा लग रहा था कि सारे लोग चुनाव आयोग को एक तरह से कटघरे में खड़ा कर रहे थे। चुनाव आयोग पर लग रहा था कि चुनाव आयोग सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही कितने तबादले क्यों कर रहे हैं। आज आप देखिए कि यहाँ एक ट्रेनिंग है, सिर्फ वहाँ जो पोलिंग ऑफिसर्स जाएंगे उनकी एक ट्रेनिंग है, और उस ट्रेनिंग में उनके साथ में किस तरह किया गया, उनको आप देखिए कि कितनी चोट लगी है, उनका ब्लड भी निकल रहा है। तो सवाल है कि ये कल्चर किसने बनाया है, ये रक्त रंजित चुनाव का कल्चर जो पश्चिम बंगाल में हम सीपीएम से लेके और आज तक टीएमसी तक देख रहे हैं। क्या भारत और भारत का लोकतंत्र क्या इसकी गवाही देगा? एक पोलिंग ऑफिसर का बहते हुए खून की गवाही देगा? तो ये रक्त जो बंगाल का चुनाव है, उस चुनाव में निश्चित रूप से इलेक्शन कमीशन की बड़ी चुनौती है। अगर वो सेक्रेटरी से लेके वहां के डीजीपी से लेके पुलिस अधिकारी से लेके अभी तक 200 से ऑफिसर का ट्रांसफर चुनाव आयोग ने किया है, उसके बाद भी अगर इस तरह की चीजें हो रही है, तो आप कह सकते हैं कि ये पूरे टीएमसी के शायद इस तरह का एक डीएनए में शामिल हो गया है, जिसे बदलना जरूरी है, और लोकतंत्र से ही ये बदल सकता है। बिल्कुल। एहतशामुल साहब, 15 साल टीएमसी को मिली, अभी मान लेते हैं 15 साल, अभी जितना मिली है उसी की बात कर लेते हैं। 15 साल में ये चीज बदल नहीं पाई। दादा बताइए, ये कितनी चिंताजनक बात है। मानते हैं कि सीपीएम के दौर में शुरू हुई थी, ममता दीदी को तो ये खत्म करना था ना। देखिए लालचंद जी, सबसे बड़ी बात है अभी जो 2 दिन पहले की घटना का ये जो फुटेज दिखाया जा रहा आपके स्क्रीन पे, ये हमारे देखिए ये तमाम चीज जो है अब समझिए चुनाव आयोग के हाथ में है, ये हम लोगों के हाथ में नहीं है। पश्चिम बंगाल की सत्ता को काबिज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी देखिए सबसे मुख्य रूप से चुनाव आयोग का समझिए सहारा लिया। इसका तमाम लोग बोल रहे हैं, सारे लोग बोल रहे हैं कि एसआईआर के माध्यम से 67 लाख 62 लाख या 1 करोड़ का टारगेट को फुलफिल कर रहे हैं। पूरी जिम्मेदारी दादा आप चुनाव आयोग पर डाल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर उनको फ्री हैंड काम करने दीजिए ना। लेकिन सर मैं 30 सेकंड लालचंद जी और मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन जितना भी आप कर लो कोशिश, जितना भी कर ले, ममता बनर्जी की इतनी पॉपुलरिटी है, ममता बनर्जी की देखिए वो चुनाव में पॉपुलरिटी दिखानी है। ठीक, कौशलकांत मिश्रा जी, इस तरह से अगर तस्वीरें आएंगी लोगों में कैसे भरोसा जगेगा कि वोट डालना है जाकर के, कोई दिक्कत नहीं है? बताइए। पहले तो एहतसाम जी ये समझ लीजिए कि अगर आपको और ममता जी को ये यकीन है कि आपका अंपायर कंप्रोमाइज हो गया तो खेल बाइकआउट क्यों नहीं कर देते? क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? मत लड़िए ना। अगर आपको इतना यकीन है कि सब कंप्रोमाइज हो चुका है तो चुनाव का बाइकआउट कर दीजिए अगर हिम्मत है तो। और नहीं करेंगे क्योंकि आपको मालूम है कि आप सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट के बाद एक ऑब्जर्वर भी सुप्रीम कोर्ट और जजेस की निगरानी में जो अपॉइंट हो रहा है, तो आपका झूठ एक्सपोज होता है। और जहां तक रही वेस्ट बंगाल हमेशा रक्त रंजित रहा है, रक्त चरित्र वाली ममता दी जिस तरीके से, इसीलिए तो चुनाव आयोग ने किया है। अभी देखिएगा जिस अधिकारी को चोट लगी है उस पे हमला करने वालों का चुनाव आयोग क्या हाल करेगा, ये सबके सामने बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आगे चलकर ऐसी घटनाएं बिल्कुल ना घटे। सौरभ कह रहा था कुछ, ऐसी घटनाएं आगे चल करके ना घटे। क्या अभी तक एक्शन लिया गया? सौरभ जल्दी बताइए।
समय भी समाप्त हो रहा है। चुनाव आयोग के तरफ से सीओ मनोज अग्रवाल ने कहा है कि एफआईआर दर्ज हो चुका है और जो 2 आरोपी हैं उनको गिरफ्तार शुक्रिया। फिलहाल समय की कमी है। सौरभ बहुत बहुत शुक्रिया, विनोद जी शुक्रिया, कौशलकांत मिश्रा जी शुक्रिया और शामुल साहब बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए इस बहस में। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।